هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل لوليك الفرج يا كريم واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين توكلت على الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ورب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ عزیزان، ہم نے کائنات میں اور انسانی وجود کے اندر خدا کے وجود کی دلائل کو ایک کافی حد تک کھنگالا یعنی تلاش کیا، تو چونکہ بحث اتنی لمبی ہو گئی تھی کہ آپ کا صبر جواب دینے لگا تھا، اس لیے وہ بحث ہم نے کٹ شارٹ کر کے اب دوسری نگاہ پر آتے ہیں کہ ایک فلسفیانہ اور عقلی زاویے سے نظر ڈالیں گے اپنے بحث پہ، اور بحث ہماری اب بھی وجود الہی ہے، اللہ کا وجود، اور یہ مختصر ہوگا یا زیادہ لمبا مسئلہ نہیں ہوگا، مختصر بحث ہوگی، تو لیکن پھر بھی اس پہ 2-4 لیکچر لگ ہی جائیں گے۔ کوشش میں کرتا ہوں اس کو کم سے کم کرنے کی، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرا پورا ساتھ دیں، اور ساتھ دینے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پوری توجہ اپنی کلاس کے اندر رکھیں، ادھر ادھر نہ سوچیں، اپنے ذہن کو مرکوز رکھیں، جو کچھ آپ سنیں گے مجھ سے اس پر مرکوز رکھیں، کہیں اور اپنے خیال کے گوڑے کو دوڑائیں نہیں، تو ورنہ مشکل ہو جائے گی۔ تو بہرحال تو دیکھیے چند ایک نقطے آج ڈسکس کرتے ہیں، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے فلسفیانہ نگاہ سے جو اقدار ہے عام طور پہ جس پہ سب کے سب متفق ہیں، متفق اللہ، اس پر سب کے سب متفق ہیں، وہ 3 اقدار ہیں، حالانکہ اصل میں 4 ہونے چاہیے تھے، لیکن کسی وجہ سے جو فیلسوف ہیں یعنی فلسفی لوگ جو ہیں، فلاسفرز جو ہیں، انہوں نے 3 پر ہی اتفاق کیا ہے، کیونکہ انہوں نے شاید منکر لوگوں کو، مادہ پرست لوگوں کو ناراض نہیں کرنا چاہا، تو ہمیں اس سے غرض نہیں ہے۔ تو وہ 3 جو اقدار ہیں ان کو ہم کبھی یونیورسل ویلیوز کہتے ہیں، کبھی ایٹرنل ویلیوز کہتے ہیں۔ ایٹرنل یعنی ہمیشہ، دائمی، ہمیشہ رہنے والے، جو کہ بدلنے والے نہیں ہیں، انسانی سوسائٹی کے اندر، انسانی سماج کے اندر، انسانی کمیونٹیز کے اندر، جہاں بھی جائیے ان کو پائیے گا۔ اور وہ کون سے ہیں؟ انگریزی میں ان کو عام طور پر بہت مشہور ہے ٹروتھ، بیوٹی اینڈ گڈنس، یعنی ان اقدار کو کبھی حس بھی کہا جاتا ہے۔ انسانی وجود کی حس، ہر انسان میں ایک حس موجود ہوتی ہے، سینسیشن موجود ہوتی ہے، سینس موجود ہوتی ہے، ایک رجحان موجود ہوتا ہے، ایک ذہن کی آگہی موجود ہوتی ہے، اور یہ 3 چیزیں ہیں۔ ایک ہے ٹروتھ یعنی سچائی اور صداقت،
सच्चाई और सदाकत। और दूसरी चीज़ है ज़ेबाई, जमाल, जैसे एस्थेटिक सेंस होती है। हर कोई अच्छी चीज़ को पसंद करता है, हर कोई खूबसूरत चीज़ को पसंद करता है, हर कोई खूबसूरत बात को पसंद करता है, हर कोई खूबसूरत नारा हो उसको पसंद करता है। खूबसूरत बातें, खूबसूरत चीज़ें, खूबसूरत मनाजिर, समझ रहे ना? इस खूबसूरती को हर कोई पसंद करता है। इसको कहते हैं एस्थेटिक सेंस। एस्थेटिक सेंस, ट्रूथफुलनेस की एक सेंस, एस्थेटिक सेंस दूसरी। इसको हिस्से जमाल कहते हैं, हिस्से ज़ेबाई। अगर फ़ारसी में आप बात कर रहे हो तो हिस्से ज़ेबाई कहेंगे, और अगर अरबी में बात कर रहे हूँ तो हिस्से जमाल कहेंगे। और तीसरी चीज़ है गुडनेस। हर कोई नेकी को पसंद करता है, बदी को कोई पसंद नहीं करता। कोई भी हो, आपका दुश्मन भी हो, चाहे वो खुद आपसे बदी करे, लेकिन जब आप बदी करने लगेंगे तो वो आपकी बदी को पसंद नहीं करेगा। हालांकि उसको अपनी बदी पर नज़र ना भी हो, लेकिन बदी को पसंद नहीं करेगा अगर उसने खुद बदी की भी हो। यानी इसका मतलब है इंसान जो है, इंसान के ज़मीर के अंदर, इंसान के वजूद के अंदर उसकी शख्सियत कैसी भी हो, बुरे से बुरा आदमी भी हो, लेकिन नेकी को पसंद करता है। उसका ज़मीर नेकी को पसंद, अंदर की आवाज़ उसे नेकी पर उबारती है। तो ये नेकी की हिस्स जो है, हिस्से नेकी तीसरी चीज़। पहली हिस्से सदाकत, सच्चाई की हिस्स, सच्चाई। झूठ को कोई पसंद नहीं करता। जब आप कस्में दिखा दिखा के उसको पूरा यकीन दिलाएंगे मैं सच बोल रहा हूँ, चाहे आप झूठ ही बोल रहे हो, तब उसे यकीन आएगा शायद ये सच ही बोल रहा है। सिर्फ समझ रहे ना, वरना वो पसंद नहीं करता है। और जो उसको पता चलेगा इसने झूठ बोला तो आपसे नफरत करने लगता है दूसरा आदमी, चाहे वो बिल्कुल रास्तबाज ना भी हो, झूठा खुद भी हो, लेकिन झूठ को पसंद नहीं करते। इन्हें दूसरे लफ्ज़ों में हम कहते हैं ये इंसानी खसलत है, ये इंसानी शख्सियत की असल है कि सच्चाई, रास्त गुफ्तारी, सच्चाई, सदाकत, और नंबर 2 ज़ेबाई, खूबसूरती, और नंबर 3 कौन सी चीज़? नंबर 3 गुडनेस, नेकी। यानी हिस्से सदाकत, हिस्से ज़ेबाई और हिस्से नेकी। एहसान करना किसी पर, किसी साथ अच्छा करना हर कोई पसंद करता है। कोई आपको देखेगा किसी के साथ नेकी करते हुए, चाहे हैवान ही क्यों ना हो, एक बेजान के साथ ही आप अच्छा ही करें। आप समझना, रास्ते से जा रहे हो तो एक पत्थर बीच में होगा, वो उठाएंगे एक तरफ रखेंगे, हर कोई अप्रिसिएट करेगा। किसी को ठोकर लग जाती, इस खुदा के नेक बंदे ने उठा के ये पत्थर एक साइड में रख लिया, है ना, पसंद करते हैं। तो ये 3 चीज़ें बिलअमूम पसंद करते हैं। ये नहीं कि सिर्फ कश्मीर में, नहीं, हिंदुस्तान भर में, और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर, कोई भी मुल्क हो, इन 3 चीज़ों को बिलअमूम पसंद करते हैं। यानी इंसानों का बेंट ऑफ माइंड जो है, इंसानों का जो शख्सी रुझान है, वो इन 3 चीज़ों की तरफ है। समझ रहे हैं कि नहीं? है ना? ये हो गई क्रॉस सेक्शन। जब आप स्टडी करेंगे एक क्रॉस सेक्शन कट करेंगे तारीख का। आज है 2021। 2021 में जहाँ जाइए ये चीज़ें पाइएगा। उसका मतलब है आपने इंसानी समाज को एक उफ़क़ी तौर पर, उफ़क़ी हॉरिज़ॉन्टल तौर पर कट किया और हर जगह देखा। जब क्रॉस सेक्शन निकाला कट करके तो उधर भी ये देखा, इधर भी ये देखा, इधर भी ये, इधर भी। आप कहते हैं हर जगह है, तो लिहाजा ये एक आलमी फिनोमिनन होगा, आलमी फिनोमिनन। कोई दूसरा यहाँ से आएगा, इसका क्या मतलब है? आलमी फिनोमिनन कैसे हुआ? आज है, 10 साल पहले नहीं था, 1 सदी पहले नहीं था, 5000 साल पहले नहीं था, 2000 साल बाद में नहीं होगा। आप कैसे कहते हैं आलमी है? तो आप दूसरे तरीके की स्टडी करेंगे। ये थी हॉरिजॉन्टल, आप करेंगे अमूदी। ये उफ़क़ी थी, आप अमूदी करेंगे। अमूदी मतलब आज देखेंगे तो यही देख रहे हैं, आज से 100 साल पहले देखेंगे तारीख के अंदर, वहाँ भी आपने यही देखा। उससे पहले 1000 साल जाएंगे फिर भी यही देखेंगे। 10,000 साल पहले जाएंगे, इंसानी समाज को देखेंगे जहाँ जहाँ है, और आप यही देखेंगे। तो आप दोनों तरीक़ों से
उफ़क़ी तरीके से भी और अमूदी तरीके से भी आपने इस चीज़ को देखा। अब कोई आप पे उंगली नहीं उठा सकता है कि आपने कैसे कहा कि ये आलमी आफाकी यूनिवर्सल आफाकी अक़दार है। अब आप कहेंगे, अगर वो कहेगा, आप कहेंगे क्या कह रहे हैं भाई, हमने उफ़क़ी तौर पर देखा हर जगह है, अमूदी तौर पर देखा तारीख़ के अंदर के हर ज़माने में था। ज़मान व मकान, मकान यानी उफ़क़ी तौर पर, ज़मान यानी अमूदी तौर पर, हमने ज़मान के लिहाज से भी देखा और मकान के लिहाज से भी देखा, इधर भी उधर भी उधर भी उधर भी, तो दोनों तरीक़ों से देखा। इसलिए आप क्या कहते हैं, आप एतराज़ नहीं कर सकते हैं, ये हर जगह था, हर जगह है, तो लिहाजा ये आलमी रुझानात हैं। तो इसको इसलिए इनको कहा जाता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल, आप समझ रहे हैं, यूनिवर्सल वैल्यूज़। इतना ही नहीं, इटर्नल। कभी कहते हैं यूनिवर्सल, शायद पता चले कि ये उफ़क़ी तौर पर बता रहा है, फिर आप कहते हैं इटर्नल, पहले से था हमेशा रहेगा। तो आप ज़मान भी ला रहे हैं, उमूदी तौर पर भी बता रहे हैं, ये तीन चीज़ें हर जगह होंगी। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये तीन चीज़ें हैं जो कि हर ज़माने में थी, हर जगह हैं, हर मकान पर है, इसलिए इनको यूनिवर्सल वैल्यूज़ कहते हैं और इटर्नल वैल्यूज़ भी कहते हैं। तो इन पे थोड़ा सा आप नज़र डालिए। पहले आप देखिए कि हिस्से सदाकत, ये हिस्से सदाकत जो है सच्चाई के हिस्स, सच्चाई के हिस्स। आप झूठ मूठ कुछ सुनेंगे, आप उसको फेंकेंगे, कहीं ये झूठ मूठ बोल रहा है, ये इल्म सही नहीं है, ये झूठ वाला इल्म है, झूठ बातें हैं, ये हदीसें सही नहीं हैं, जाली हदीसें हैं, गढ़ी हुई हदीसें। आप इनको फेंकेंगे, उस पर आप भरोसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर मौजूद है एक हिस्स जिसको हिस्से सदाकत कहते हैं, और उस हिस्से सदाकत का ताल्लुक किस चीज़ से है? आप हमेशा दानाई के पीछे पड़े रहते हैं, इल्म के पीछे पड़े रहते हैं हर वक्त। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो बारी ताला ने, अल्लाह जल्ल सुबहान ने आपको एक ऐसा जहन दिया है जो कि जुस्तजू कर रहा है, इनक्विजिटिव जहन आपको अता किया है, आपको अता किया है एक इनक्विजिटिव जहन, एक इनक्विजिटिव जहन। इनक्विजिटिव यानी मुतजस्सिस जहन, तजस्सुस करने वाला, तलाश करने वाला, ढूंढने वाला, हर तरफ देखने वाला और मालूम करने वाला। समझे ना? तो यह है इनक्विजिटिव माइंड। इंसान का जहन खुदा ने जो दिया है इनक्विजिटिव, ये तलाश करने वाला, सर्च करने वाला, कुरेद करने वाला, ढूंढने वाला, इधर भी उधर भी उधर, जहाँ से मिले सच्ची बात वो हासिल करो, है कि नहीं? तो ये इनक्विजिटिव माइंड दिया है। ये इनक्विजिटिव माइंड जो दिया है इसको कहाँ रखा है? आपके जहन में। और आपको कहाँ रखा है? एक कायनात के अंदर। कोई एक तरफ है इनक्विजिटिव माइंड और दूसरी तरफ पूरी कायनात रखी है, और उस कायनात में आपके बाकी लोग भी होंगे, आपके माशरे भी होंगे, आपके सब कुछ होंगे। आप इनक्विजिटिव माइंड की वजह से हर जगह तलाश करते, सवाल उठाते रहते हैं, ये क्या है, वो क्या है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। और इस तरह क्या पैदा हो जाता है? इल्म दानिश, इल्म दानिश या दानाई, इल्म दानिश पैदा हो जाती है। तो इल्म दानिश हासिल करने के लिए आपके लिए बुनियाद कौन सी चीज़ बन जाती है? यही। कौन सी चीज़? कौन सा वैल्यू? वैल्यू का नाम क्या है? वैल्यू का नाम कौन सा वैल्यू? ट्रूथ। ट्रूथ, सदाकत ढूंढ लेना, ट्रूथ। इटर्नल वैल्यू है ट्रूथ। सत्यम, सत्यम, ये सत्यम जो है, ट्रूथ जो है, सदाकत जो है, ये आपको उबारती है, आपको आमादा करती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा दानाई हासिल करें, बेवकूफ़ी को छोड़ दें, जहालत को छोड़ दें। आप समझे ना? उसको रद्द करें, जहालत को रद्द करें, जहालत से दूर रहे, और जहालत के बदले हासिल क्या करें? इल्म हासिल करें, और बेवकूफ़ी के बदले दानिश दानाई हासिल करें। और ये किस वजह से है? सत्यम की वजह से। सत्यम, सत्यम यानी ट्रूथ, ट्रूथ यानी सच्चाई,
सच्चाई यानी सदाकत। ये सदाकत एक यूनिवर्सल वैल्यू है इंसानी समाज के अंदर, इंसानों के अंदर, ये एक चीज़ है। और इसको हम क्या कहते हैं? हिस्से सदाकत, ये एक हिस्सा है और ये हमेशा है। आप कहेंगे ये बहस है क्यों हम कर रहे हैं? ये हमें इसलिए करनी है ये बहस ताकि हम पता कर लें ये हिस्स किसने रखी, ताकि ये इंसान इस इल्म के पीछे रहे, दानाई के पीछे रहे, दानिश के पीछे रहे। ये बाद में आपके जहन में खुद ब खुद सवाल उठेगा ये इंसान में किसने रखी। फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वा, दोनों चीज़ें इंसान के वजूद में अल्लाह ने इल्हाम कर दी है, फुजूरहा भी और तक़वाहा भी। तो ये कोई और तो उसमें नहीं डाल सकते ना। तो अब ये जो नेचर है, ह्यूमन नेचर, कॉमन ह्यूमन नेचर, एवरीवेयर, फाउंड एवरीवेयर एंड फाउंड एट ऑल टाइम्स, तो ये बता रहा है कि कोई हस्ती है। तो ये अकली बहस हम कर रहे हैं, हम कोई और बहस नहीं कर रहे हैं इस वक्त, फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये एक चीज़ है, इल्म दानिश के लिए आपको आमादा करता ही। दूसरी चीज़ क्या थी? हाँ, ब्यूटी। और ब्यूटी जो है ट्रूथ ब्यूटी, ब्यूटी यानी सुंदरम, सत्यम सुंदरम, शिवम हम नहीं कहेंगे क्योंकि हमें उससे गर्ज नहीं है, सत्यम सुंदरम, ठीक है कि नहीं? ये सुंदरम क्या है? जमाल, हिस्से ज़ेबाई। हर कोई अच्छी चीज़ को पसंद करता है। और ज़ेबाई का मतलब ये नहीं कि बदनी ज़ेबाई, बॉडीली ब्यूटी, इसका ये मतलब नहीं। ब्यूटी मतलब है हर चीज़ की ब्यूटी, ख्यालात की ब्यूटी, आप समझ रहे हैं ना? आमाल की ब्यूटी, किसी के आमाल अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत हैं, आप पसंद करते हैं। जब कोई किसी के आमाल अच्छे हो आप उसे पसंद करते हैं। किसी की बातें पसंद अच्छी हो, ब्यूटीफुल हो, आप सुनना पसंद करते हैं। आप जाते हो सुनते हैं, इसकी बातें खूबसूरत होती, मैं सुनूंगा, इसकी बातें बेकार की नहीं होती, इसकी बातें वक्त ज़ाय करने की मुतरादिफ नहीं होती, इसकी बातों से कुछ हासिल होता है और अच्छी चीज़ें हासिल होती है। इसलिए ब्यूटी, हिस्से ज़ेबाई, हिस्से ज़ेबाई, हिस्से ज़ेबाई। ये दूसरी चीज़ है, कौन सी? वैल्यू, जो कि इटर्नल वैल्यू है, यूनिवर्सल वैल्यू। तो ये भी आपको आमादा करती किस चीज़ पर? बुरी और बदसूरत चीज़ों को, ख़यालात को, वगैरह वगैरह को तर्क करने पर आमादा करती इंसान को। यानी इंसान को एक ख़ास डगर पर चलाना चाहती, ये वाला जो है हिस्स, ये हिस्स चलानी चाहती है कि इंसान को एक ख़ास डगर पर, बदसूरती से परे, बदसूरती से दूर, ताकि अगर शैतान कभी इंसान को आमादा करता है बुरे अमाल करने पर, तो उस बुराई को खूबसूरत बना के पेश करता है। और जो बुरे काम करता है उसको धीरे, पहले तो बुरा लगता है, फिर धीरे धीरे कहते हैं नहीं मैं समझता हूँ ये बुरा नहीं है, ठीक है, फिर बुराई को अच्छा समझने लगता है और उसके लिए तरह तरह की वजाहतें देता है, एक्सप्लेनेशन देता है, मैंने इसलिए किया। आज भी तारीख़ में ऐसे मौरिख़ीन हैं, ऐसे तजज़िया निगार हैं जो कहते हैं करबला में यही होना था और क्या होना था। जब कोई करेगा बगावत तो उसकी बगावत के ख़िलाफ़ तो हुकूमत को करना चाहिए, वो जो कुछ किया उस वक्त के बदकारों ने। ये क्या हो रहा है? यानी उस काम को, उस बुरे काम को, अमल कबीहा को, अमल शनिया को एक फराहम करते हैं बुनियादें, बहैसियत बदसूरत नहीं बल्कि कबूल सूरत के तौर पर पेश करने का। और ये कौन करवा रहा है? ये शैतान करवा रहा है। इंसान को बुराई जो है उसे ऐसे नेक तरीके में पेश करता है कि आदमी वो करने पर आमादा होता है। लेकिन हकीकत ये है, वरना अगर ऐसा ना हो और इंसान शैतान को ये करने ना दे तो कोई नहीं है ऐसा जो कि बुरी चीज़ को, बदसूरत चीज़ को पसंद करे, ऐसा मुमकिन नहीं है। और तब भी इतनी सदियाँ गुजर गई ऐसे लोगों को वकालत करते हुए उस वक़्त के ज़ालिमों की, तब भी कामयाब नहीं हो रहे कि हर कोई समझता है नहीं ये बेकार की जो है ये एक्सप्लेनेशन ये बेकार की, सही नहीं। यानी बिलउमूम
इंसान जो है, इंसान के जहन जो है वो हिस्स ज़ेबाई को पसंद करते हैं, वो खूबसूरत चीज़ों को पसंद करते हैं, खूबसूरती को पसंद करते हैं, चाहे खूबसूरती बदनी हो, जिस्मानी हो, ख्यालों की हो, आमाल की हो, रविश की हो, जिस तरह की भी ज़ेबाई हो उसको पसंद करता है हर कोई। इसको एस्थेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स, एस्थेटिक्स यानी हिस्से ज़ेबाई, एस्थेटिक्स। तो ये भी इंसान को आमादा करता है अच्छे अच्छे काम करने पर, और ख़ास कर तब जबकि तीसरा वैल्यू जो है, तीसरा वैल्यू तो ज़्यादा ही इंसान को इस पर आमादा करता है। और वो कौन सी चीज़ है? गुडनेस। कोई नहीं है दुनिया में जो कहेगा कि गुडनेस एक अच्छा वैल्यू, यूनिवर्सल वैल्यू नहीं होना चाहिए। कोई भी कहता है गुडनेस एक वैल्यू है, यूनिवर्सल वैल्यू है, हर कोई कहता है हाँ है और होना भी चाहिए। क्योंकि अगर अच्छाई ना हो, नेकी ना हो, हर कोई हर किसी के साथ नेकी ना करे, ये दुनिया ज़िंदगी गुजारने के काबिल जगह नहीं रहेगी। हर कोई नहीं होगा ऐसा। जालिम लोग भी, बदतरीन लोग भी ये नहीं कहेंगे कि ना 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 गुडनेस नहीं, बल्कि बैडनेस सबसे अच्छी चीज़ है, बुराई अच्छी चीज़ है। अच्छा ये नेकी क्या बोलने लगे अब नेकी। और कभी कभी जिनके अंदर से कोई और उन्हें ख़राब करना चाहता है, और वो है शैतान, वो कभी कभी कहने लगते हैं बाबा इस नेकी से क्या फ़ायदा, नुकसान ही होता है बाद में, बुराई ही करते वही बेहतर था। एक तो अच्छा ही करते, नेकी करते हैं, ऊपर से कभी कभी उसका उल्टा खमियाजा भुगतना पड़ता है। ऐसा आपको सुनने में आएगा। लेकिन जो कहने वाला है वो अपनी तरफ से खुलूस से कहता है, लेकिन ये खुलूस से पेश करने वाला उसे कोई और है जो उसे आमादा कर रहा है ऐसे बात करने का, ऐसे बात करने के लिए आमादा करे। और वो कौन है? फिर वही शैतान। और वो पेश करता है, ये एक लॉजिक पेश करता है, आप नेकी करेंगे आपको क्या मिलेगा, आप बताओ ना मिलेगा क्या? तो आप कहेंगे हाँ कुछ नहीं मिलेगा। फिर आप कहेंगे नहीं उधर मिले। अरे कब की बात को, किसको कौन देख के आया है? ऐसे भी कुछ लोग बातें करते हैं, और ऐसी बातें कोई करवाता है। वरना इंसान का नेचर जो है, इंसान का नेचर ये है कि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक इटर्नल वैल्यू है, ये बदला नहीं जा सकता। आप समझेंगे? ये वक्त, ये बहरहाल सरसरी आखिर पर हमें आना है, आखिरी चीज़ पर। और वो कौन सी चीज़ है? और वो चौथी चीज़ है, और वो है हिस्से दीनी, रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड, religiosity, चौथी चीज़। और चौथी चीज़ religiosity, piousness, religiosity, piousness नहीं, religiosity, piousness वो है गुडनेस। religiosity हिस्से दीनी। हिस्से दीनी को समझने के लिए कभी कभी कोई लोग आपको कहेंगे कि नहीं ये हिस्से दीनी आप अपनी तरफ से इसमें ऐड कर रहे हैं, वरना इसकी एक परमानेंस, मुस्तकिल जगह नहीं है, कभी होती है कभी नहीं होती है। एक दीनी हिस्स, एक दीनी रुझान हर किसी में होता है। वो कहेगा नहीं ये सिर्फ उन कम्युनिटीज़ में होती है जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं। जैसे कम्युनिज्म है, वहाँ लोगों में ये हिस्स नहीं होती। आप समझने के लिए कहेंगे ये वक्ती है, परमानेंट नहीं है। अब इस पर थोड़ा सा गौर करेंगे तो ये हिस्स दीनी जो है, रिलीजियोसिटी की हिस्स जो है, ये ज़माने क़दीम से पाई जाती है, ज़माने क़दीम से पाई जाए। इब्तिदाई जो ग्रुप्स हैं, कम्युनिटीज़ हैं, ह्यूमन कम्युनिटीज़, वो उस ज़माने में गारों में ज़िंदगी गुजारते थे, मकान नहीं हुआ करते थे, गारों में रहते थे। और आजकल जो दुनिया में दूर दराज जंगलों में, इलाकों में गार जो दरियाफ्त हो रहे हैं, उन गारों में नक्काशी देखी गई है, आर्ट वर्क देखी गई, जो दीवारें हैं गारों की, उन पर नक्काशी की गई है। एंथ्रोपोलॉजी में ये डिस्कवरी हो रही है, हर जगह जहाँ कहीं भी गार है, अक्सर बेशतर
جہاں اندازہ ہے کہ انسان اس میں رہے ہوں کبھی ہزاروں سال پہلے، وہاں پینٹنگز دیکھی گئی ہے، تصویر کشی دیکھی گئی ہے، پینٹنگز، تصویر کشی۔ اور یہ پینٹنگز جو ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ پینٹنگز ایکٹیویٹی تھی اس وقت کے لوگوں کی، انسانوں کی، جب انسان قدیم ہے، زمانے قدیم ہے، ابھی غاروں میں زندگی گزار رہے تھے۔ اب ان پینٹنگز کو آپ سٹڈی کیجئے، تو سٹڈی کرتے کرتے آپ کو پتہ چلے گا اس میں ایسی شکلیں بنائی گئی ہے جو یا تو ان کے شکاروں کے متعلق ہے، کیونکہ اس زمانے میں جو انسان تھا وہ کیا تھا؟ ہنٹر تھا، پھر فوڈ گیدرر بن گیا، پھر آخر پر سویلائزڈ اس کا طریقہ کار رہا۔ وہ ہنٹر تھا اس زمانے میں، کھانے کے لیے شکار کرتا تھا، کھاتا تھا، شکار نہ ملتا تو بھوکا بیچارہ رہتا تھا پتہ نہیں کتنے دنوں، جب تک دوسرا شکار مل جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا پینٹنگز شکار کے بارے میں ہوا کرتی تھی۔ یا نمبر 2 قسم کی پینٹنگز ان جو نیچرل فینومینن ہیں، نیچرل فینومینا جو ہیں ان کے بارے میں منظر کشی کی گئی ہے، جیسے بجلیاں گرنا، زلزلے پیدا ہونا، غار کہیں کہیں گر جانا اور انسان اس میں پھنس جانا، اس طرح کی پینٹنگز، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور تیسری قسم کی جو ہمارے مطلب کی ہے، اور وہ تیسری قسم کی چیزیں کہ ان بستیوں میں رہنے والے لوگوں کو دیکھا گیا ہے یا تو اپنی بستی کے سب سے بڑا سردار جو ہے اس کے سامنے جھکتے ہوئے، یا کسی خیالی جیسے گریس میں جو دیوتا ہوا کرتے تھے ان کی شکل بتائی گئی ہے، جیسے کام دیو کو ایک آنکھ والا دکھایا گیا ہے، تو اس ایک آنکھ کی وجہ سے ایک تیر نکلتا ہے، وہ تیر مارتا ہے کام دیو، آپ سمجھے نا؟ تو کام دیو کی پوجا کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اس طرح کی پینٹنگ سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پوجنے کا، کسی کا حکم بجا لانے کا جو طریقہ ہے وہ ابتدا سے تھا، ابتدا سے موجود تھا۔ زمانہ کا وقت ختم ہو گیا تو اس لیے زمانہ ہم کل واپس لائیں گے اور پھر بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔